Hello everyone, welcome to your physics concept class. But today I am not going to teach physics. Don't surprise, listen me carefully what I say. First of all, I am very happy you all have chosen the science stream. But there are two categories in science stream. One of them is PCM, that is the physics, chemistry and mathematics, and the other one is PCB, that is physics, chemistry and biology. In both the categories, the physics is a common subject, chemistry is also a common subject, and on the basis of personal discussion with some of the students, I feel that the students of bio, that is from the PCB, feel some difficulties in solving the physics numericals. As you all know, the physics, in the physics, numerical are the soul of physics. If you can't solve the numericals properly, then you are not a good student of physics. But why the student of bio stream feeling the difficulty in solving the numericals? The reason is simple, due to the mathematics. So there are some very important topic of mathematics which may work as a tool in the physics. So I realized that I have to explain some of the topics of mathematics. Those are very important for the physics. So I decide that I will explain these topics of mathematics in our class, one by one. So for this particular class, I have chosen a easiest topic of mathematics which is very important, and you also study it at the 10th standard, that is the quadratic equation. For today's topic is quadratic equation, this one, the quadratic equation. So let me know what is the quadratic equation. So the definition of quadratic equation: an algebraic equation of second degree is the quadratic equation. That is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. दिस इज द सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें कौन कौन से टर्म है, जैसे आप देख सकते हैं द मल्टीप्लायर ऑफ एक्स स्क्वायर. तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. तो ए यहां क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द वी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, C is a constant. This is the constant. So this is the quadratic equation, and these are the terms involved in quadratic equation. और यहाँ से जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें नॉर्मली इसमें x की दो वैल्यूज पॉसिबल है. x के लिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो टू वैल्यूज हमें इसकी मिल सकती हैं. उन टू वैल्यूज को values of x, that is x1 and x2 are called roots of
द इक्वेशन। अगर हम इसमें x के लिए सॉल्व करो तो यहाँ x की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, उनमें से हम एक को x1 सपोज कर सकते हैं, एक को x2 सपोज कर सकते हैं, और उनको हम क्या बोलेंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और किस तरीके की होंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन नोटिफाई करता हूँ, आप देख लीजिए किस टाइप की होंगी। वी हैव सम इक्वेशन दैट इज, यहीं से नोट करता हूँ, द फर्स्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पे अगर मैं नोट करूँ, 2x² + 5x -12 = 0. The second one is 3x² + 8x + 5 = 0. The third one is 4x² - 4ax and plus a square minus b square = 0. The fourth one is px² qx plus r, px² qx plus r = 0. These are the four equations as the examples of quadratic equation. आप देख सकते हैं इसी फॉर्म में है, x² का एक मल्टीप्लायर यहाँ पे है, कोफिशिएंट ऑफ x के टर्म में है, और ये c कांस्टेंट वैल्यू है, डिजिट है तो कांस्टेंट होगा। सेम हियर 3x² + 8x + 5 = 0, 4x² - 4ax plus a² minus b² = 0, and the other one is px² plus qx plus r = 0. These are the quadratic equation. अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या क्या टर्म इसमें होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसके जो रूट्स हैं पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक टर्म यहाँ पर आता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो इस टर्म में आपको पता है a है, b है, इक्वेशन में c भी होता है। तो अगर यहां पे हम लिखें d = v² - 4ac, दिस टर्म d is called discriminant of the quadratic equation. Discriminant means the difference between the square of the coefficient of x minus product of constant and the multiplier of x² and 4 b² - 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, इसका यूज क्या है ये भी जानना जरूरी है। ये डिसाइड करता है कि इक्वेशंस के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं और क्या वो रियल होंगे या नहीं होंगे। तो हम इसको भी नोट डाउन करते हैं, यह कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। In the A position, if D is equals to to 0, that is b² - 4ac = अगर ये 0 है तो इसके जो दो रूट्स होंगे, मीन्स दो रूट्स कौन से होंगे, x1 और x2, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ ये क्या रिजल्ट होगा, x1 एंड x2 आर इक्वल, ये इक्वल होंगे, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। अब अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन मैं यहां बता देता हूं, द बी पोजीशन, ओके, d इज ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग हुआ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन है, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर दो सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हैं। कौन कौन से, द इक्वेशन हैव टू रियल, इस इक्वेशन जो भी इक्वेशन आपको गिवन है अगर उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे इसके दो रियल सॉल्यूशन होंगे। और अगर सी पोजीशन पे हम बात करें, if d is less than 0, that is b² - 4ac is less than 0। लेस देन 0 का मीन्स निगेटिव वैल्यू अगर इसकी आती है तो 2 -
इमेजनरी सोल्यूशंस, तब इसी इक्वेशन के सोल्यूशन तो दो ही होंगे लेकिन रियल ना होके इमेजनरी होंगे। फर्स्ट कंडीशन में वन रियल सोल्यूशन होगा, रूट इक्वली होंगे। सेकेंड कंडीशन, अब मैं एक बार आपको फिर से ये शॉर्ट में रिवाइज करा दूँ। द सेकेंड डिग्री एल्जेब्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मीन्स एक बार x की मैक्सिमम पावर 2 होगी इक्वेशन में, एक बार x की पावर 1 होगी और एक कांस्टेंट इक्वेशन में होगा और इनका इक्वल 0 होगा। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है, लाइक कितने सारे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, सारी इसी की फॉर्म है। इनको हम अगर इंडिकेट करते हैं, इसमें a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c एक कांस्टेंट है। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर हम कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और इसको चेक करें बी स्क्वायर माइनस 4ac किसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, तो ये 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन के दोनों रूट मतलब x की दोनों वैल्यू इक्वल होगी। अगर एक की वैल्यू 2 आई है तो दूसरा भी 2 आएगा, एक की 3 आई है तो दूसरी भी 3 आएगी। दूसरी पॉसिबल सिचुएशन ये है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। उस सिचुएशन में इक्वेशन के सोल्यूशन दो होंगे और दोनों ही रियल होंगे, मतलब दोनों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और थर्ड सिचुएशन जो है डी लेस देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आएगी, 0 से कम आएगी, तब सोल्यूशन तो यहाँ फिर से दो होंगे लेकिन वो इमेजनरी होंगे। ठीक है, तो 3 इसमें कंडीशंस हैं। अब इस इक्वेशन के सोल्यूशन होता कैसे है, इसका सॉल्व कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर सकते हैं, मैं उसके आगे फिर आपको लेके चलता हूँ। इतना पोर्शन मैं रब नहीं करूँगा, ठीक है, इसको मैं रब करूँगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आपका डिस्क्रीमेंट रब हो गया, ठीक है, ये पार्ट रब हो गया। नाउ कोफिशिएंट आपने नोट डाउन कर लिए हैं, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब हम किसी एक इक्वेशन को इनमें से ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मे भी 10th में ये आपने सॉल्व किया हो, इस तरीके का फैक्टराइजेशन किया हो, तो कैसे होता है, एक सिंपल तरीका है वो मैं बता देता हूँ। हम यहाँ क्या करते हैं अगर यहाँ पर x का कोई मल्टीप्लायर नहीं है, लाइक 1 है, ये ओनली x स्क्वायर होता, तो इस 12 के हम ऐसे फैक्टर करते जिनका डिफरेंस और सम इसके इक्वल हो, मीन्स 5 के इक्वल हो, एक तरीका। और अगर x के साथ भी कोई मल्टीप्लायर है, जैसे यहाँ पे 2 है इस इक्वेशन में, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन पहले इससे करेंगे, मीन्स c इंटू ए, ये कितना होगा 12 इंटू 2 24। और इस डिजिट को हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि उनका या तो डिफरेंस या सम 5 आ जाए। जैसे देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो 2x स्क्वायर, अब देखिए 12 इंटू 2 24 हुआ और 24 के फैक्टर इस तरीके के जिनका डिफरेंस या सम 5 हो, तो हम 8 3 जा 24 एज्यूम कर सकते हैं। 8 3 जा 24 और 8 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होता है 5। तो वी कैन राइट हियर 8 minus 3x minus 12 equals to 0. Open it, x square plus 8x minus 3x minus 12 equals to 0. Now we can solve it by taking the common. Common ले लेते हैं, तो common जब लेंगे तो यहाँ 2x common मिल रहा है, that is x plus 4 is here, minus यहाँ पर आप 3 common ले सकते हैं, x और minus common ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस अगेन 4 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 4 इज कॉमन, इन दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन है, रिमेनिंग टर्म इज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ वी हैव द टू सॉल्यूशंस, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 4 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x इक्वल्स टू 3 and x equals to 3/2. This is the second solution. So in this equation we have the two values of x equals to -4 and x equals to 3/2. तो यहाँ पे दो सोल्यूशन मिल गए हैं हमें, ठीक है। और यहाँ हम अगर चेक कर सकते हैं, अगर b और a के फॉर्म में चेक करें तो x की दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। लेकिन अगर इसी जगह पर ये क्वेश्चन होता, द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, px स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है और एक कांस्टेंट भी है आर। लेकिन क्या ये तरीका यहाँ वर्क करेगा? ऐसा कोई तरीका आपके पास में है कि आप r इंटू पी करें, पी आर के फैक्टर इस तरीके से करें कि वो q के इक्वल हो जाए? p और r की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है क्या है, तो पी आर के फैक्टर आप q के इक्वल कैसे ले आएंगे? मीन्स ये मेथड आपका फेल हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन में तो वर्क करेगा लेकिन हर जगह ये वर्क नहीं करता, और जहाँ हर जगह ये वर्क नहीं करता तो सिंपल सी बात है, हमें कोई दूसरा मेथड चाहिए होगा। दूसरा मेथड जो होता है उसको हम बोलते हैं धराचार मेथड, और वो इसका स्टैंडर्ड या जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब उसको आप किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये तो सिंपल तरीका है, किसी भी इक्वेशन को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं अगर होती है, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं होती, हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, मैं उसके बारे में आपको बोलता हूँ। ये देखिए, इसको चाहें तो आप एग्जाम्पल्स के फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा प्ले करके या स्क्रीन पॉज करके। अब यहाँ देखिए इक्वेशंस पे ही आते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन इसका ये होगा x इक्वल्स टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द स्टैंडर्ड और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे रूट्स की बात की है हमने, रूट्स इसके होंगे, x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार क्या करेंगे माइनस बी प्लस करके इसको सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस बी माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ दो वैल्यू मिलेगी। तो पहली वाली को हम x1 सपोज करेंगे और दूसरी वाली को x2, और जब x1 x2 हम सपोज कर लेंगे तो हमारे पास में एक कंडीशन होगी कि हम इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल पाए। तो सबसे पहले इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स, अगर ये दोनों रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें, दैट इज x1 प्लस x2, ये आपका होगा माइनस बी अपॉन ए। मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करके v की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू निकाल ली और माइनस बी अपॉन ए कर दिया, तो x1 x2 का एडिशन डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स इन द गिवन इक्वेशन, तो आपको कुछ नहीं, कंपेयर करके फिर b और a फाइंड कर लेना, ये निकल आएगा। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स का मीन्स क्या होगा x1 x2, और ये क्या होगा c अपॉन ए। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन है और ये सम ऑफ द रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अगर x1 x2 है। अब ये स्टैंडर्ड और जनरल सॉल्यूशन जो है किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्क करेगा, यहाँ आपको इक्वेशन फैक्टराइज हो रही हो या फैक्टराइज ना हो रही हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया पहले सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ये उस मेथड से हो ही नहीं सकता क्योंकि फैक्टराइज ही नहीं होगा। हम क्या करेंगे, p इंटू आर करेंगे, और p इंटू आर मीन्स पी आर हुआ, और पी आर को के मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरीके से फैक्टराइज कर ही नहीं सकते कि उसका डिफरेंस या सम q के इक्वल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, इसमें वो सिंपल मेथड नहीं लगेगा। इसमें कौन सा मेथड लगेगा, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखते हैं। एग्जाम्पल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस प्लस आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। हेयर a इक्वल्स टू p द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल्स टू q the coefficient of x, and constant the c equals to r. Okay, now x के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो v की वैल्यू यहाँ क्या है माइनस क्यू, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज क्यू स्क्वायर माइनस 4ac, 4a is p and c is r, 4pr डिवाइडेड बाई 2a, a is p। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर हम इसको अलग अलग नोटिस करना चाहें तो x1 का एक बार हम q प्लस लेके नोटिस करेंगे, q स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाई 2p,
और दूसरा जो x2 होगा वो होगा -q। पहले टाइम में फर्स्ट x1 के लिए हमने प्लस ले लिया और x2 के लिए माइनस ले लेंगे, माइनस अंडर रूट q स्क्वायर -4pr अपॉन 2p। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x1 एंड x2। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इससे रिलेटेड, नेक्स्ट वन। तो पहले तो आप इसको नोट डाउन करेंगे स्क्रीन को पॉज करके, और फिर ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको शो किया कि सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, तो उसके लिए हमें ये स्टैंडर्ड और जनरल सॉल्यूशन यूटिलाइज करना होगा। और यू कैन नोट डाउन इट बाय वॉचिंग द स्क्रीन एज ऑलवेज। Now the other question I have more one question, this 4x square minus 4ax. Other question is 4x square minus 4ax plus a square minus b square equals to 0. Find out the roots of or the values of x in the given quadratic equation. तो यहाँ भी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई ए है, मीन 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप इस तरीके से फैक्टराइज करें कि उनके मल्टीप्लिकेशन का सम और डिफरेंस 4a के इक्वल हो जाए, और ये तरीका यहाँ यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही जनरल सोल्यूशन लगाएंगे। तो क्या फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। पहले तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करते हैं। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4a, कंपेयर प्लस के साथ ही होता है, और सी की वैल्यू है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, now x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So putting the values of a, b, c here. Now b is equals to -4 is a minus plus 4a. माइनस फॉर्मूले में है और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -4 माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 16 a स्क्वायर माइनस 4a is equals to again 4 and c is this a square minus b square, a square minus b square divided by 2a. 2 into a is 4, that is 8. Okay, now this value is 4a plus minus under root 16 a square minus, इसको मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 4 16, और इसको ओपन कर दें तो 16 a स्क्वायर, और जब ओपन करेंगे तो इनसाइड माइनस है ब्रैकेट में, प्लस हो जाएगा, प्लस 16 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। हेयर 16a स्क्वायर पॉजिटिव एंड 16a स्क्वायर इज नेगेटिव, सो आई कैन रब इट। नाउ वी हैव x इक्वल्स टू 4a प्लस माइनस, हेयर 4a प्लस माइनस अंडर रूट ओनली 16b स्क्वायर बचा है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो ये होगा 4b डिवाइडेड बाई 8। तो हेयर वी कैन, 4 इज कॉमन, a प्लस माइनस b अपॉन 8, 4 टू 8, तो x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस b अपॉन 2। और अगर दो अलग अलग वैल्यू लिखनी है हमें तो x1 इज इक्वल्स टू, एक बार हम प्लस लेके यूज कर लेंगे, एंड x2 इक्वल्स टू a माइनस b, एक बार माइनस साइन के साथ और एक बार प्लस साइन के साथ। तो दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन x1 एंड x2। और मैं वो भी चेक करके दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा है। अगर हम इसी इक्वेशन में सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं x1 प्लस x2, तो ये मिलेगा a प्लस वी अपॉन 2 प्लस a माइनस वी अपॉन 2। इसको अगर हम सॉल्व करें a प्लस वी माइनस प्लस a माइनस वी अपॉन 2, तो यहाँ देखिए b पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, दिस इज 2a अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू a आया है। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, सम ऑफ द रूट्स की जो हमने बात की, तो उसमें हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए। तो x1 प्लस x2 माइनस बी,
तो b यहाँ माइनस है और माइनस माइनस प्लस 4a अपॉन a इज 4 यहाँ पे कैंसिल कर लिया, डिवाइड कर लिया, a आ गया। तो ऐड करके देख रहे हैं तो भी उतना आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रहे हैं तो भी वही आ रहा है। और अगर हम इनका प्रोडक्ट कर लेते x1 x2 तो यहाँ के अकॉर्डिंग ये होता है a प्लस वी y2 इंटू ए माइनस ए प्लस वी y2 इंटू ए माइनस वी अपॉन 2। और यू नो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी is equals to the formula a square minus b square. So we can write here a square minus b square अपॉन 2 इंटू 2 4। ये इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया है। और अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखें तो कितना होता है c अपॉन a, c अपॉन a। तो यहाँ पे अगर हम x1 x2 c की वैल्यू देखते हैं कितनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a की वैल्यू है 4, तब भी ये वही आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप लिखें या रूट सॉल्व करने के बाद उनको ऐड या प्रोडक्ट कर लें। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट या सम ऑफ द रूट्स पूछा जाता है। तो सिर्फ आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूटिलाइज कर सकते हैं। सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ आप ये नोट डाउन कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आई होप यू कैन सॉल्व इट। और दिस इज द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आई थिंक अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फील नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके फिजिक्स में इस तरीके के फैक्टराइज टर्म आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। और फिर भी अगर होती है तो यू हैव टू कंसीडर योर सेल्फ, आपको अपने आप के बारे में सोचना होगा और आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट in our next class with a new topic of mathematics, that may be graph or logarithmic term and a straight line and some other topics. One by one we will discuss in this class, but for today it is sufficient. Goodbye.